اور یہ حکومت کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا ہے کہ ایک میسیج بھی ہے ان کے لیے، اور ان کو یہ مقام شرم دلانے کے لیے بھی ہے کہ ایک پرسنل ایک شخص اگر وہ اتنے بڑا انقلاب لا سکتا ہے اور اتنا بڑا دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے 60 بندے تھے، پوری ریاست کو میں خود کفیل کر سکتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کے منہ پہ ایک بہت بڑا تھپیڑا ہے اگر حکومت سمجھے ایک شخص کا۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہمیں بھی ان کو ساتھ دینا چاہیے اور حکومت کو بھی دینا، جس طرح یہ ایک مشہور ہے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں جس طرح یہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ عام لوگ بھی میرے پاس نہیں آئے یا کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں، تو ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے بھئی بچے کی کیا ضرورت ہے ماں کو پتہ ہوتا ہے کب اس نے سونا ہے، کب جاگنا ہے، کب اس کے کپڑے چینج کرنے ہیں، کب اس کو کھانا دینا ہے، کب دودھ پلانا ہے، یعنی یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور جب ماں کو خبر ہی نہ ہو کہ میری اولاد اس کی تربیت کرنا، پرورش کرنا، اس کی ہر طرح کی ضروریات نشو و نما کرنا، اس کی روحانی اخلاقی تربیت فزیکلی، تو میں سمجھتا ہوں ریاست یعنی بالکل جب وہ ماں اگر اس اولاد سے بے خبر ہو جائے اسے ماں کہلانا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح تو ہماری ریاست جو ہے وہ ریاست کے ٹھیک منصب تو فائز ہے، ایک منصب کے جو تقاضے میں سمجھتا ہوں حکماں کو پورے نہیں کر رہی ہیں۔ تو زراعت کا آج دن تک ابھی شاخ تراشی کا ٹائم ہے، جیسے بات چل رہی تھی، تو ابھی یہاں پہ الحمدللہ جو سیڑا کے دفتر کے اندر لوگ موجود ہیں، میری بھی 42 سال عمر ہو گئی ہے، تو کبھی کسی کا دل چاہے تو آ جائے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہاں پہ ہماری کوئی رہنمائی نہیں کسی نے کی، نہ یہاں پہ کوئی وزٹ کیا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ابھی آپ کے پودوں کو کس چیز کی کھاد کی ضرورت ہے، یہاں پہ اس کو سلفر کی ضرورت ہے، پوٹاش کی ہے، زنک کی ہے، مختلف قسم کی کھادیں ہیں۔ جس طرح انسان کو اپنی انرجی بڑھانے کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح پودے کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے آج دن تک اس جو سیڑا کا محکمہ زراعت ہے یہ بالکل 0 پوائنٹ پہ کھڑا ہے۔ کھیت کے اوپر میں نے 2.5-3 لاکھ روپیہ لگایا ہے، اگر میرے مقابلے میں کسی نے اتنی زمین تیار کیا ہے، پودے اس کے بنجر زمین کے اندر لگ گئے ہیں اور میرے اتنی زرخیز زمین کے اندر نہیں لگے ہیں، تو یقیناً میں مجرم ہوں گا۔ آپ وہ جگہ کا وزٹ کرائیں، دکھائیں کہاں پہ آپ نے وہ پودے لگایا ہے۔ لیکن بعد نصیب سے 75 سال ہو گئے ہیں، 75 سال میں اگر ایک کام یہ محکمے کرتے تو آج اس ریاست کے اندر 75 کام ہوئے ہوتے، لیکن اللہ کے فضل سے انہوں نے بس تنہا عطا کی رکھا ہے۔ 35 سال اگر 40 سال سیڑا کے اس آفس کے اندر زراعت والوں کو ہو گئے، ان کو پوچھیں کہ آپ نے کوئی کام کیا ہو یا سیڑا کے اندر ایک آپ نے پھلدار درخت لگایا ہوا ہو، تو یقیناً اس درخت کے بدلے میں ان کو اپنی طرف سے 10,000 روپیہ انعام دوں گا۔ ہمارے جموں کشمیر کے اندر مختلف ویلفیئر جو کام کر رہی ہیں، اور یہ جو ہماری جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم ایگریکلچر کے اوپر کسی قسم کی فرقہ واریت نہ کریں، قوم کو اجتماعیت کی طرف لے کر آئیں اور اس کے اوپر کام کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مرکزی پارلیمانی بورڈ ہے، یہ 10 اضلاع کی نمائندگی کرتے ہوئے آج ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، اور آخری پیغام یہ ہے کہ احساس بیداری انتہائی ضروری ہے۔ اگر احساس بیداری نہیں ہوگا تو کوئی بھی قوم کسی بھی میدان میں ترقی نہیں کر سکتی، تو احساس بیداری انتہائی ضروری ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جب ہر فرد اپنی ذمہ داری پہ عمل کرتے ہوئے آگے نہیں آئے گا، ہم کسی بھی میدان میں ترقی نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت موجود ہوں تحصیل ہجیرہ کے نوائی علاقے اور سیز فائنل کے بالکل ملکہ گاؤں سیڑا میں، جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں۔ ذوالقرنین زرعی فارم ہے وہاں پر موجود ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت پارلیمانی بورڈ آف ایگریکلچر جموں کشمیر کے کچھ احباب یہاں پر آئے، انہوں نے اس زرعی فارم کا وزٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پونچھ یونیورسٹی سے پروفیسر ڈاکٹر شاہد صاحب بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی یہاں پر وزٹ کیا۔ سر، آپ اتنے دور سے چل کر یہاں پر آئے اور آپ نے یہ سارا وزٹ کیا اس فارم کو، اور کیا سمجھتے ہیں کہ اب گورنمنٹ کو ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا، سب سے پہلے بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ لوگوں نے دعوت دی، ذوالقرنین محفوظ صاحب نے۔ ہم ان کی دعوت پہ یہاں پہ آئے، ہم نے ان کا جو کام دیکھا ہے، ان کا اصل میں جو نعرہ تھا، جو انہوں نے بیان دیا تھا، انہوں نے بیان یہ دیا تھا کہ ہم اگر حکومت میرے ساتھ سپورٹ کرے اور 60 آدمی مجھے دے دیے جائیں تو میں 1 سال کے اندر آزاد کشمیر کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتا ہوں۔ ان کا بہت بڑا نعرہ تھا، اور یہ صرف نعرے کی حد تک نہیں بلکہ ان کا جو کام آج ہم نے دیکھا، اور کام کو دیکھ کر تقریباً 15 سے 20 مختلف
उनके काम देखकर मुझे यकीन हो चुका है कि अगर ज़ुल्करनैन महफूज साहब जैसे लोग हों तो वो बिल्कुल 1 साल के अंदर इसको अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपने महकमों की बात की, महकमों के हवाले से बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आज हमारा जो एग्रीकल्चर है ये मकबूजा कश्मीर के मुकाबले में है? क्या हमारा एग्रीकल्चर इंडिया के मुकाबले में है? क्या हमारा एग्रीकल्चर चाइना के मुकाबले में है? अगर नहीं है तो इसके ऊपर इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ये महकमा एग्रीकल्चर, महकमा ज़राअत अगर वक्त के तकाज़ों के मुताबिक काम नहीं करेगा, हम इसका बाइकाट कर देंगे। जी, ये थे शौकत साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। आप की खासी उम्र है और पुराने वक्तों में भी यहाँ पर लोग ज़राअत के साथ मुंसलिक रहे हैं। अब जिद्दत आ गई है तो हुकूमत क्यों नहीं वो जिद्दत अपनाती जो पूरी दुनिया में एक इनकलाब है, ज़री इनकलाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि हुकूमतों को इस वक्त ऐसे लोग और ऐसे अफराद मिले हुए हैं जो सिर्फ मफाद परस्ती की दौड़ में लगे हुए हैं। उनको न मुल्क के साथ कोई हमदर्दी है, न ही उनकी तवज्जो मुल्क के ऊपर है, न मुल्क के अवाम के ऊपर है, और ना ही वो इस मुल्क को जो है वो दुनिया में कोई मकाम दिलाने की फ़िक्र रखते हैं। बुनियादी बात यही है कि अपने आप को, अपने मुल्क को कोई आदमी फ़ायदा देने के लिए, यानी अपने आप को सिर्फ फ़ायदा देने की बात करते हैं, अपने मुल्क को, अपने मामलात को और पूरी अवाम को कोई फ़ायदा देने की बात नहीं कर रहा है। इस वजह से ऐसी सूरत हाल पैदा हुई। जी जी सर, आपने विज़िट किया तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों को तलाश करे जो ज़मीन के साथ लगाव रखते हैं और जदीद जो टेक्नोलॉजी है ज़राअत की वो यूज़ करते हैं। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं आप हुकूमत आज़ाद कश्मीर को? हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो लोग इसके साथ ज़राई काम करते हैं तो हुकूमत उनका मदद करे, जो ज़रूरियात हैं उनकी पूरी करे, तो इंशाअल्लाह हम किसी प्लेटफार्म पे पहुंच सकते हैं। जी जी, मेरे साथ मौजूद हैं पूंछ यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर हैं जनाब डॉक्टर शाहिद साहब। सर, एक पूरा डिपार्टमेंट है, एक पूरी वजारत है और हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़मीनें बंजर हैं और जो लोग काम करते हैं हुकूमत उनकी भी मामलत नहीं करती, ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो ज़ुल्करनैन साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें दावत दी और साथ साथ में हमने उनका काम देखा तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। बाकी जो वादी के कश्मीर के नौजवान हैं उनको भी सामने आना चाहिए और इस पे जो है ना अपनी एग्रीकल्चर और अपनी ज़मीनें जो बंजर हो चुकी हैं उस पर इसी तरह काम करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बात है। फिर उसके बाद मैं शौकत कादरी साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, कश्मीर टीवी का, कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने ज़ुल्करनैन साहब और इस तरह के बहुत सारे और भी जो लोग हैं आपकी टीवी की वसासत से वो भी इनकरेज होंगे और इस तरह के जो है ना ज़राअत के जो ज़मीनें हमारी जो बंजर पड़ी हैं जैसे आपने कहा, तो उनको जो है हम आबाद कर सकें। तो महकमों का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो महकमे अपनी तरफ से काम करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ में जो है वो आपको पता है कि हमारे क्योंकि महकमे उनकी सरपरस्ती इस तरह से है कि वो मतलब उस तरह एफिशिएंटली काम नहीं करते और गवर्नमेंट का सर उसकी वजह क्या है? जो गवर्नमेंट का, जो मैं आपको ये बात मुकम्मल कर लूँ फिर आपको जाना मैं इस पे बात करता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो महकमों को चला नहीं सकती है। गवर्नमेंट जो है, मैं पिछले अरसे में जो है अमेरिका में था और वहाँ पर हमने देखा कि जो सेब की, अंगूर की मुख्तलिफ़ अक़साम जो है वो बनाई हैं और वहाँ पर जो किसान हैं उन्होंने अपने बोर्ड बनाए हुए हैं और वो अपनी वैरायटियाँ रिलीज़ करते हैं और जो उनको मसला होता है, जैसे अगर कोई बीमारी आ गई है सेब के ऊपर, तो वो क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटियों को और जो रिसर्च के इदारे हैं उनको पैसे देते हैं और उनको कहते हैं कि हमें इस चीज़ का मसला का हल तलाश करके दें और वो रिसर्च करते हैं। और इसी तरह से उन्होंने अपने मतलब फार्मर्स जो हैं वो भी इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो उन्होंने अपने फ़ंड बनाए हुए हैं और वो खुद जो है इसी तरह हमारे लोगों को भी इसी तरह से आगे आना चाहिए। नौजवान जो है महकमों की तरफ अगर आप देखते रहेंगे तो वो जो है तो आप मायूसी का शिकार रहेंगे, इसलिए आप लोग आगे आएँ, सारे जो है वो मिलकर काम करें। उससे ये होगा कि महकमे जो है जो आपके टैक्स मनी से जो है अपनी तनख्वाहें लेते हैं वो भी जो है मजबूर हो जाएंगे कि आप लोगों का इंटरेस्ट इतना है कि वो उनकी नौकरी
जाती रहेगी अगर वो काम नहीं करेंगे। तो इसलिए ये एक्टिविज़म की ज़रूरत है। लोग हमारे ये देखते हैं कि नौजवान जितने भी हैं, ख़ास तौर पर जो जिनकी ताकत है कि वो जो इस तरह के काम कर सकते हैं, वो ये करते हैं कि सुबह जूते पहने, उसको पॉलिश किया, सफ़ेद कपड़े लगाए और बाज़ार चले गए। या फिर ख्वाब देखा कि मैं UAE चला जाऊंगा, वहाँ जाके बड़े जो है ना दरख्तों के ऊपर लगे होंगे जो पैसे, वहाँ से झाड़ूंगा और लेकर आ जाऊंगा। तो इसलिए 1 2 3 चीज़ें, जैसे जुल्करनैन साहब हैं, ये अब मिसाल हैं लोगों के लिए कि लोग बाहर गए थे, वहाँ से वापस आए और अपनी ज़मीन आबाद कर ली। इसी तरह जो बाकी जो नौजवान हैं उनको भी इनकरेज करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, मैं अभी भी जुल्करनैन साहब को ये बता रहा था कि अगर आपके साथ लोग होंगे, जैसे इन्होंने दावा किया है 60 लोग मेरे पास होंगे, 60 लोग अगर, या इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, हर बंदे को अपना काम करना चाहिए। तो अगर ये बल्क में प्रोडक्शन करते हैं तो बल्क में प्रोडक्शन ये होगा कि अगर मंडी के अंदर आपकी एक प्रोडक्शन डंप हुई है तो एक सप्लाई चेन बनेगा, वहाँ पर पेस्टिसाइड कंपनी भी आएगी, वहाँ पर खाद का बंदा भी आएगा, वहाँ पर आपकी जो प्रोड्यूस है उसको उठा के लेके जाने वाला बंदा भी आएगा और किसी इंडस्ट्री तक पहुँचाने वाला बंदा भी आएगा। तो यही काम जो है, आप अगर वादी में जाएँ जो मकबूजा कश्मीर है दूसरी तरफ, तो वहाँ उन्होंने सेब की एक सप्लाई चेन बनाई है। सप्लाई चेन इस तरह बनी है कि लोगों ने मेहनत की, आर्चर्ड लगाना शुरू किए, काम लोगों से शुरू होगा। वहाँ पर महकमे भी हैं, महकमे काम नहीं करते हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही है। लोग, मैंने वहाँ से बहुत सारे लोग मेरे साथ, उन्होंने अगर महकमे काम नहीं करते तो फिर महकमों को ख़त्म कर देना चाहिए ना, ये इतना बोझ है रियासत के ऊपर। हाँ, ये भी आपकी बात ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि काम न करने की वजह ये है कि हम लोग उन्हें मजबूर नहीं कर रहे काम करने पर। गवर्नमेंट देखे ना, गवर्नमेंट किसी भी मुल्क को, उस निज़ाम को चलाना होता है, गवर्नमेंट ने चलाना होता है। उस रियासत का काम है कि लोगों को, उन शहरियों को खुराक मुहैया करना, उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करना। लोग तो अपने तौर पर करते हैं, लेकिन रियासत क्या करती है? देखें, रियासत का भी काम अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा टैक्स मनी है। आप अगर माचिस की तीली भी खरीदते हैं तो उस पर 18% GST दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। एक टेलीफोन की कॉल करते हैं, उस पर भी आप GST दे रहे हैं। उसके अलावा भी इनकम टैक्स दे रहे हैं। तो हमारे टैक्स मनी पे अगर कोई बंदा पल रहा है, उसकी तनख्वाह चल रही है, तो हम उसे क्यों नहीं करते? गवर्नमेंट अगर करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपना इंटरेस्ट लें, ठीक है। और जब इंटरेस्ट लेंगे तो अगर आप उनसे आगे हैं तो गवर्नमेंट उनसे खुद ब खुद पूछेगी कि भाई आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं। वो लोग जाना अच्छा, आप कुछ यूनिवर्सिटी में वहाँ पर कोई रिसर्च का इस तरह का शोबा है कि जो इस तरह की चीज़ें करे, कोई जिद्दत आए, क्या सानू को कुछ मुहैया करे, जो पूरी दुनिया में एक जिद्दत आ रही है ज़राअत के हवाले से? जी बिल्कुल। इसी तरह हमारे जो है बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो रिसर्च करते हैं, ठीक है, और रिसर्च करते हैं और मुख्तलिफ जो है ना चीज़ों पे मुख्तलिफ जो शोबे हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर के जो फल फ्रूट हैं, आपकी सब्जियात हैं, इनके ऊपर रिसर्च होती है। कीड़े मकोड़े हैं, एंटोमोलॉजी है, प्लांट ब्रीडिंग वाले हैं, वो भी काम करते हैं। इसी तरह सॉइल वाले, ज़मीन के ऊपर। तो इस तरह से है कि मुख्तलिफ जो है वो रिसर्च वहाँ पे होती है और उसको मुख्तलिफ जो है पेपर्स के ज़रिए लोगों को डिसमिनेट भी किया जाता है। लेकिन हमारे पास भी, मैंने आज तक जो है ना, मुझे भी तकरीबन को 20 साल हो गए हैं, 15-20 साल यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, आज तक मैंने कोई फार्मर जो है मेरे पास आते हुए नहीं देखा वहाँ पर कि वो अगर पूछे कि हमने जो है वो कौन सी गंदम लगानी चाहिए, कौन सा फल लगाना चाहिए, ज़मीन में कौन सी खाद डालनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखें, लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ पर डिपार्टमेंट है, हम उनके पास जाएं। ये तो आगाही का मसला है ना। हाँ, ये तो हुकूमत को उनको करना चाहिए कि वो आगाह करे कि आप फलान डिपार्टमेंट के पास जाएं, वो आपकी मामलत करेगी, या वो खुद डिपार्टमेंट आकर विजिट क्यों नहीं करता? जी बिल्कुल। ये देखा ना, मैं उसी सिलसिले में यहाँ पर हाजिर हूँ। तो डिपार्टमेंट भी हमारे जो हैं वो देखें, जो महकमा ज़राअत है या जो भी महकमे जाते हैं, उनमें भी यही है कि लोगों ने जो पिछले अरसे में जो हमारा 70s, 80s और 90s और 2000 के अंदर यही रुझान रहा कि हमारे जो मेहनत कश लोग थे सारे जो है बाहर चले गए, ठीक है। उससे ये हुआ कि एक गैप आना शुरू हो गया और महकमों ने भी काम छोड़ दिया और लोगों ने भी काम छोड़ दिया। तो अब जैसे जुल्करनैन साहब हैं, इस तरह से के लोग जो है वो अगर सामने आते जाएंगे, उस तरह महकमे के ऊपर भी प्रेशर डालते जाएंगे और लोग काम चलते जाएंगे। जी जी, मेरे साथ कुछ और अहबाब मौजूद हैं। सर, आपने जुल्करनैन नर्सरी फार्म का विज़िट किया,
तो क्या कहना चाहते हैं? कभी सोचा था कि इस मुकाम पे एक ऐसा इलाका पसमाना इलाका है, इस तरह का जिद्दत ज़राअत में होगा? शुक्रिया गुज़ार था आपका, कि मैं अब्बास साहब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, शौकत कादरी साहब का, कि उन्होंने मुझे इधर लाया साथ। तो मेरे ख्याल में अगर हम मसाइल डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा, चूँकि बहस उन्होंने बहुत सारी कर ली है, तो यहाँ जो लोग आगे आए तो आगे आने में लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं। पहला सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों के पास पानी है, अगर पानी ही नहीं है तो नौजवान आगे आके करेंगे क्या? तो अपलिफ्टिंग का सिस्टम ही नहीं है हमारे पास। पानी की बेसिक नीड है कहते हैं एग्रीकल्चर की, तो जब पानी नहीं होगा तो फिर लोग फार्मिंग की पानी तो बहुत है, देखें ये दरिया जा रहा है इधर है, लेकिन इसको कहाँ पर डैम्प करें, किस तरह महफूज करें उस पानी को? ये तो हुकूमत के प्रोजेक्ट होते हैं ना। लोग इतने आज 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। हाँ, पानी के लिए इधर तो इनके पास तो है, लेकिन हजीरा देखें या तितनोट देखें या जो दूसरी साइडें हैं, उधर तो पानी का मसला स्टिल मौजूद है। खास करके जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो बारिशें होती हैं, वहाँ पर पानी को स्टोर करने के तरीक़ेकार होते हैं। पानी बारिश का भी स्टोर किया जा सकता है। वो जो स्टोर किया जा सकता है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 100 ड्रम का 200 ड्रम 300 ड्रम स्टोर करेगा, तो वो इतनी बड़ी फार्मिंग में तो नहीं काम कर सकता। या वो लोगों के इस तरह वो तालाब बनते हैं, आपाशी के पास, महकमा आपाशी के पास तालाब आते हैं, तो वहाँ पर तालाब बनाए जाए ना, फिर उस पानी को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े तालाब बनाए जाएँ। लेकिन जो हमारे पास जो तालाब होते हैं वो पूरे महल्ले का तालाब होता है, तो उसमें तो लोग उसको उस तरह नहीं कर सकते। कम से कम अपने घर के ज़रूरत की सब्जी तो पूरी कर सकते हैं ना बंदा। घर की ज़रूरत पूरी की जा सकती है। ये बात सेंसर हमारे साथ अवामी सीट स्टोर बनाया जी, तो ये 2 महीना इसलिए सफ़र करते रहे कि बारिश ही नहीं हो रही थी कि लोग उसको सब्ज़ी खरीद के बीज खरीद के सीड खरीद के आगे लगा सकें। इसी तरह खाली ये नहीं है, यहाँ हमारे आज़ाद कश्मीर में मेडिसिनल प्लांट से बहुत अच्छा काम हो सकता है। मैं हजीरा डिग्री कॉलेज में विजिटिंग टीचर के तौर पे काम कर रहा हूँ, वहाँ मैंने एक बड़ा अच्छा प्लाट भी बनाया है, और जो लोकल हमारे प्लांट है उस पर भी हम काम करने वाले हैं, तो थोड़ी तरफ स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके। इसी तरह वहाँ हम किचन कंपोस्ट पे मैं काम करवा रहा हूँ बच्चों से। हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत है बच्चों के अंदर, लोग भी काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक उनको कहीं से एड नहीं आएगी, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, तो गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे कर सकती है कि उनकी चूँकि वो एग्रीकल्चर से उनका वो ताल्लुक ही नहीं है, उनका कंसेप्ट ही नहीं है एग्रीकल्चर से, तो वो तो लोगों को इस तरह सपोर्ट नहीं कर सकते। उनको पता ही नहीं है कब ये जो कंसेप्ट कब आएगा? कंसेप्ट जो हमारे वो कहते हैं ना कि जब शऊर आने से, किसी के पास दौलत होने से, जब लोग भूखे मरेंगे फिर आएगा। शऊर आने से जितना सरमायादार को ख़तरा होता है ना, या ये हुकूमतों को, इतना आम बंदे की दौलत आने से उसको ख़तरा नहीं होता। जी जी। तो ये अब्बास शाहीन साहब, बहुत सारे यहाँ पर खेत हैं जो बंजर पड़े हुए हैं, मज़ीद भी बंजर हो रहे हैं, लोग भी दिलचस्पी उस तरह की नहीं अपने अंदर लाते, और साथ जो महकमा जात हैं वो भी तवज्जो नहीं देते। आगाही मुहिम की ज़रूरत होती है, तो हमारे लोग जो हैं, हमारे नौजवान जो हैं, वो फॉरेन कंट्री की तरफ दौड़ रहे हैं, वहाँ पर भी जाकर इस तरह के ये काम करते हैं। तो यहाँ पर काम क्यों नहीं शुरू किए जाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जुल्करनैन महफूज साहब का मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने ज़राअत के वाले से इतनी पर्सनल अपनी यानी ज़ाती कोशिश से इतनी बड़ी एक्टिविटी की हुई है, और ये हुकूमत के लिए मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा है कि एक मैसेज भी है उनके लिए, और उनको ये मुकाम शर्म दिलाने के लिए भी है कि एक पर्सनल एक शख्स अगर वो इतने बड़ा इनकलाब ला सकता है, तो इतना बड़ा दावा कर सकता है कि मुझे 60 बंदे थे, पूरी रियासत को मैं खुद तकलीफ कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ ये हुकूमत के मुँह पर एक बहुत बड़ा थपेड़ा है अगर हुकूमत समझे एक शख्स का। इसमें मैं समझता हूँ कि एक तो ये हमें भी उनको साथ देना चाहिए, और हुकूमत को भी देना। जिस तरह ये एक मशहूर है कि रियासत माँ जैसी होती है, मैं समझता हूँ बाज़ लोग कहते हैं, जिस तरह ये डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि आम लोग भी मेरे पास नहीं आए या किसी के पास नहीं जाते हैं, तो रियासत माँ की तरह होती है। भाई बच्चे की क्या ज़रूरत है, माँ को पता होता है कब इसने सोना है, कब जागना है, कब इसके कपड़े चेंज करने हैं, कब इसको खाना देना है, कब दूध पिलाना है, यानी ये माँ की जिम्मेदारी होती है। और जब माँ को खबर ही ना हो कि मेरी औलाद, उसकी तरबियत करना, परवरिश करना, उसकी हर तरह की ज़रूरियात नशोनुमा करना, उसकी रूहानी अखलाकी तरबियत फिज़िकली, तो मैं समझता हूँ रियासत यानी बिल्कुल, जब वो माँ अगर उस औलाद से बेखबर हो जाए, उसे माँ क्या रहना कभी नहीं हो सकता है। इस तरह तो हमारी रियासत जो है, वो रियासत के ठीक मनसब तो फ़ायज़ है, एक मनसब के जो तकाज़े मैं समझता हूँ वो माँ को पूरा नहीं कर रही हैं। और भी हमारी जितनी डिज़ीज़ है, वो मैं समझता हूँ कि जो फूड है ना, बेसिकली ये फूड खाते हैं, इसी से हमारी सेहत बनती है, खून बनता है, क्या चीज़ें बनती हैं। जब ये बेसिकली ज़राअत जो है, ये वो सोर्स है। जब हम ज़राअत को हम अपने सही एक ऑर्गेनिक तरीके से, और जो इस तरह की केमिकल के पाक हम
उगाएंगे उसमें क्या होगा, हमारी बेशुमार 70% जो डिजीज़ है हमारी, यानी वेलफेयर स्टेट बन जाएगी, हम खुशहाल हो जाएंगे। इसलिए ज़राअत इसीलिए कहा गया ज़राअत इबादत भी है, ज़राअत बेदुनिया की वर्जिश भी है, इबादत भी है, इसीलिए आका अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा मैसेज है, हर ये इंसानियत के लिए पैगाम है कि हर बंदे को इस ज़मीन से देखें। कोई चीज़ एक होती है प्रोसेस फूड, एक होती है बेसिक फूड। कोई जो हमारी प्रोसेस फूड है, इतने बेकरी जितनी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक उसका ओरिजिन ज़मीन से निकलता है बेसिकली वो। तो मैं समझता हूँ कि ये मेन सोर्स यही है। तो मीन ऐसल कौम और हमारी जो मैं समझता हूँ कि हुकूमतों को इससे तवज्जो देनी चाहिए, प्रोग्राम को फैसिलिटेट करना चाहिए और इस तरह के आगाही सेमिनार्स होने चाहिए। मैं समझते जो भी ये ज़राअत के जो इदारे हैं, जो इनके हर तहसील हैं, डिस्ट्रिक्ट सतह पे, इन पे ऐसे इस तरह के सेमिनार करवाने चाहिए, प्रोग्राम रखने चाहिए। कम कहते हैं यूनिक कौंसिल्स की सतह पे, लोकल कौंसिल की सतह पे, वार्ड की सतह पे एक अवेयरनेस मुहिम होनी चाहिए, लोगों को आगाही मुहिम हो, फिर कोऑर्डिनेशन बने। मैं समझता हूँ ये एक बहुत लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है और ये हुकूमत की जिम्मेदारी पहले बनती है, बाद में काउंटर में अवाम की बनती है। तो आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन महफूज साहब। सर, आप अक्सर ये दावा करते हैं जी कि 60 बंदे हम मुझे दिए जाएं तो मैं इस रियासत को फूड के अतबार से खुद कफील बनाऊंगा। तो हुकूमत के पास तो 60 से भी ज़्यादा महकमा जाते हैं, वो नहीं खुद कफील बना सकती, तो आप किस तरह खुद कफील बनाएंगे? क्या आइडिया आपके ज़हन में? के पास तो 2000 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने वतन की मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, गैरों के संगे मर मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। सबसे पहले मैं आप JK TV का मतलब ज़ुल्फ़िकार साहब सर आपका शुक्रिया कि आपको जब भी हम कहते हैं तो आप सब काम काज अपने एक साइड पे रख के यहाँ पे आ जाते हैं और इस बात को हाईलाइट करते हैं। आपका सर बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और आज मेरे जो मेहमान ग्रामी यहाँ पे तशरीफ़ लाए, इनका भी मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने यहाँ पे आके मेरी हौसला अफजाई की है। तो यकीनन इनका यहाँ पे आना, मैंने इनसे काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा है और उन्होंने काफ़ी मेरी रहनुमाई की है। एक बार दिल की अथाह गर्मियों को खुश आमदीद इनको और इन्हें इनका खराज तहसीन पेश करता हूँ कि रियासत के अंदर इनकी एक मोहब्बत है, एक इनकी ज़रा नवाजी है, प्यार मोहब्बत है कि जिस तरह के कितने किलोमीटर का सफ़र तय कर यहाँ पे आना और इकट्ठे होके इस बात को हाईलाइट करना कि हम रियासत को खुद कफील करने के लिए उसके ऊपर काम करेंगे। तो जहाँ तक आपने 60 बंदू का कहा है, मैंने ही कहा था, ये मैंने हर स्टेज से ये पैगाम दिया है। तो मुझे कोई पढ़े लिखे जो डिग्री होल्डर हैं वो नहीं चाहिए, बल्कि 60 बंदे जो काम करने वाले हों मेरे साथ काम करें। और गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर अगर जदीद टेक्नोलॉजी जो मेरी मांग हो वो हमें अता करे तो इंशाअल्लाह साल का मैंने दावा किया था, तो मैं आज इस प्लेटफार्म से एक बार फिर कहूँगा कि 10 महीने के ऊपर टाइम नहीं होगा। इंशाअल्लाह 10 महीने के अंदर अंदर ये रियासत जो आटे की लेनों के अंदर लोगों की तजलील कर रही है, वहाँ पे लोग खड़े होते हैं और ये उनको आटा नहीं मिलता, फिर साहब आगे से फरमाते हैं कि जी अगले हफ्ते ले लेना, तो वो बेचारे पूरा हफ्ता चावल ही खाते हैं और बड़ी मुश्किल से जो है वो अपना पेट को पालते हैं। तो इस मौजूदा सूरत हाल का जो वाहिद हाल ये है कि या तो गवर्नमेंट हमारा साथ दे, अगर नहीं देती है तो फिर इस प्रोजेक्ट को जो रियासत के अंदर जो ज़राअत के लोग हैं इनको मेरे ख्याल में घरों को भेज दे, वहाँ पे बैठ के ये आराम से खाएं पिएं। और अपाशी जितने भी लोग हैं, अपाशी वालों ने तो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये तावन किया है, साथ में इन्होंने, अभी तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उनको जितने भी महकमा अपाशी के लोग हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जब भी उनको मैंने बोला तो फिर आए। एक बार आने के बाद उन्होंने जब विज़िट किया और दूसरी बार उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आपको पानी का जो प्रॉब्लम है वो हम उसका हल निकालेंगे। महकमा ज़राअत तो ज़राअत का आज दिन तक अभी शर्त तराशी का टाइम है, जैसे बात चल रही थी। तो अभी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो शेड़ा के दफ्तर के अंदर लोग मौजूद हैं, मेरी भी 42 साल उम्र हो गई है, तो कभी किसी का दिल चाहे तो आ जाए तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पे हमारी कोई रहनुमाई नहीं किसी ने की, ना यहाँ पे कोई विज़िट किया है कि आप क्या कर रहे हैं, अभी आपके पौधों को किस चीज़ की खाद की ज़रूरत है, यहाँ पे इसको सल्फ़र की ज़रूरत है, पोटाश की है, जिंक की है, मुख्तलिफ़ किस्म की खादें हैं। जिस तरह इंसान को अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है, इस तरह पौधे को ज़रूरत होती है। लेकिन बदकिस्मती से आज दिन तक इस जो सेड़ा का महकमा ज़राअत है ये बिल्कुल 0 पॉइंट पे खड़ा है। तो यकीनन हम इस चंद किलोमीटर के फासले पर AD ऑफिस वहाँ पर मौजूद है, तो कभी गए वहाँ पर या वो AD साहब? बिल्कुल सर, पिछली बार मैंने 4042 पौधे इनसे लाए हैं, 4200 के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से एक पौधा भी नहीं लगा,
फिर मैंने पिछले दिनों बात भी किया तो उन्होंने कहा सबके तो लग गए हैं, उनके तो फल लगे हैं। मैंने कहा वो तो आसमान पे भी लगे हुए हैं, आप मुझे ज़रा विज़िट कराएं कहाँ पे लगे हैं। जितनी मेरी ज़मीन तैयार है या मैं इस पर मेहनत किया, एक एक ये जो जगह देख रहे हैं खेत के ऊपर मैंने 2.5-3 लाख रुपया लगाया है। अगर मेरे मुकाबले में किसी ने इतनी ज़मीन तैयार किया है, पौधे उसके बंजर ज़मीन के अंदर लग गए हैं और मेरे इतनी ज़रखेज़ ज़मीन के अंदर नहीं लगे हैं, तो यकीनन मैं मुजरिम हूँगा। आप वो जगह का विज़िट कराएं, दिखाएं कहाँ पे आपने वो पौधे लगाए। अच्छा, इस वक्त आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या डिमांड करते हैं आप हुकूमत से कि क्या चीज़ आपको प्रोवाइड करे? सर मैं मंजिल की तरफ हमेशा गमज़म रहता हूँ, चलता रहता हूँ। रात को जब सोता हूँ तो 1-2 घंटे में अपनी एनर्जी इस तरफ खर्च करता हूँ कि आए दिन हमने एक नई सोच पैदा करनी है, एक नया काम करना है जो इस रियासत की बेहतरी के लिए हो। तो सबसे पहले ये बात है कि यहाँ पे अभी पानी की सहूलत हो गई है, उसके बाद अभी जो फिल फॉर ज़रूरत है, अगर ये 2-3 टनल यहाँ पे लगाए जाएं तो इंशाअल्लाह 6 महीने के टाइम के अंदर ये सेड़ा, नातर, बटल और ततापानी के अंदर जितने भी ये टमाटर, खीरे, सब्जियां जाते हैं इंशाअल्लाह ये पिंडी की तरफ से नहीं आएंगी, यहाँ से इंशाअल्लाह पिंडी की तरफ जाएंगी। ये मैं बिल्कुल अपने वसूख के साथ कह सकता हूँ। उसके अलावा ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम है जो पौधों को पानी देने के लिए है। यहाँ पे ज़मीन उस तरह की पंजाब की तरह बराबर नहीं है, पथरीली ज़मीन है, तो यहाँ पे पानी जो है लगाने में काफ़ी दुश्वारी होती है। अगर ड्रिप इरिगेशन है उसको अगर फ़ाल किया जाए तो यकीनन ये भी एक सहूलत हो जाएगी। और मज़ीद ये जहाँ पे जो जगह है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे वर्कशॉप बनाई जाए ताकि लोग आएँ, हम उनकी तालीम करें। हमें कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, हमें कोई लालच नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ इस काफ़िले को बढ़ाना है, इसको तक़वियत देनी है ताकि लोग खुद कफ़ील हो सकें। जिनके पास ज़मीनें हैं वो ख़ुद काम करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो दूसरों को ज़मीनें दें और वहाँ पे वो काम करें, बंजर ज़मीनों को आबाद करें। या जिनके पास बिल्कुल कुछ नहीं है, ग्रो बैग के अंदर आप ये जो है ज़रखेज़ मिट्टी भर कर वहाँ पे आप अगर 4-5 ग्रो बैगों के अंदर करेला लगा लेते हैं, 4-5 के अंदर आप जो है वो टमाटर लगा लेते हैं, हरी मिर्च लगा लेते हैं, शिमला मिर्च, मूली, गाजर, जितनी भी सब्जियां ज़्यादातर लगा सकते हैं, तो वो घर अपने मामले के अंदर खुद कफ़ील हो सकता है। लेकिन बाद नसीब से 75 साल हो गए हैं, 75 साल में अगर एक एक काम ये महकमे करते तो आज इस रियासत के अंदर 75 काम हुए होते। लेकिन अल्लाह के फजल से इन्होंने बस तनख्वाह तक ही रखा है। 35 साल अगर 40 साल सेड़ा के इस ऑफिस के अंदर ज़राअत वालों को हो गए, इनको पूछें कि आपने कोई काम किया हो या सेड़ा के अंदर एक आपने फलदार दरख्त लगाया हुआ हो तो यकीनन उस दरख्त के बदले में इनको अपनी तरफ से 10,000 रुपया इनाम दूँगा। अरे जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ वेलफेयर जो काम कर रही हैं और ये जो हमारी जितनी सियासी पार्टियाँ हैं उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप कम अज़ कम एग्रीकल्चर के ऊपर किसी किस्म की फ़िरकावारियत ना करें, कौम को इज्तिमाइयत की तरफ लेकर आएँ और इसके ऊपर काम करें। और दूसरी बात यह है कि हमारा ये मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड है, ये 10 अज़ला की नुमाइंदगी करते हुए आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और आखिरी पैगाम ये है कि एहसास बेदारी इंतहाई ज़रूरी है। अगर एहसास बेदारी नहीं होगा तो कोई भी कौम किसी भी मैदान में तरक्की नहीं कर सकती। तो एहसास बेदारी इंतहाई ज़रूरी है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जब हर फर्द अपनी ज़िम्मेदारी पे अमल करते हुए आगे नहीं आएगा, हम किसी भी मैदान में तरक्की नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, ये थे आज के इस इवेंट के मौके पर मौजूद शुरा जो दूर दराज के इलाकों से जो किसान हमारे भाई हैं, वो साथ कुछ गवर्नमेंट के जो एहलकार थे वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने ज़ुल्करनैन महफूज ज़री फार्म का विज़िट किया। यहाँ पर उन्होंने देखा कि किस तरह की एक जिद्दत है ज़राअत के अंदर। इनका कहना है कि जो रियासत के जो अदारे हैं, इस तरह के ज़राअत है, आपाशी है, ये दीगर है अदारे जात हैं, वो इस वक्त मफलूज हो चुके हैं। वो कोई तवज्जो नहीं देते, ना ही कोई आगाही मुहिम चलाते हैं कि किसानों को जो जदीद ज़राअत के जो असूल हैं, वो जो तरीक़ाकार हैं, वो सिखाए जाएँ, जिसकी वजह से यहाँ की जो इतनी ज़रखेज़ जो ज़मीनें थी वो बंजर हो चुकी हैं। और जो नौजवान हैं वो दड़ादड़ पासपोर्ट बनवा कर बैरून मुल्क जाकर खाक छानते हैं और आखिर पर उनकी जो डेड बॉडियाँ हैं वो बक्सों में आकर यहाँ पर पहुँचती हैं और तरस जाते हैं वो अपने ख़ानदान को देखने के लिए, लेकिन सारी उम्र उस खाक को छानते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि रियासत को यहाँ पर जो ज़री ज़मीनें हैं या जो दीगर ज़मीनें हैं उनको आबादकारी की तरफ ले जाएं और नौजवानों को जदीद जो टेक्नोलॉजी है ज़राअत की उससे रोशनास करवाएं,
ताकि वो खुद कफील हूँ, गल्ला जो है वो उनकी ज़रूरत है वो भी पूरी करें, और जो बाकी मांदा जो उनके पास गल्ला बचता है वो फ़रोख्त करके दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो ख़रीद कर अपनी जो ज़िंदगी है वो अच्छे तरीके से गुजारें। नाज़रीन, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मलिक ज़फ़्फ़ार, JK TV, सेड़ा, तहसील हजीरा, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जम्मू कश्मीर।